Good morning, friends. Today we are going to start our maths, the chapter number 1, real number. Friends, you know what is real number? It is very essential to know about the real numbers because our first chapter of maths in NCERT, that is about real number. Okay, friends, so let us start. What is real number? What is the exact definition of real number? Let me start. Friends, remember it, real number consists two types of numbers, rational numbers and irrational numbers. And irrational numbers. In earlier class, we have already studied about the rational numbers. Friends, you know what is rational numbers? Because these both are contained in real numbers. And this is the biggest set of numbers. Okay. So in 9th we have already studied what is rational number. Remember it. Rational number can be expressed in P by Q forms. It means rational number always can be expressed in P by Q form where P and Q both are integers. Remember this. Both are integers. I hope you know what is integers. 0, positive, negative, negatives are all are integers. But remember this. But Q not equal to 0. पहले हमने कहा कि both are integers. दोनों integers होने चाहिए. That's right. But remember it. In denominator, that is the Q, cannot be 0. If any number satisfies this condition, we can say this is rational numbers. Let's see some example. Okay, tell me 2 by 3. What do you say about this number? Is it rational number? Let's check the conditions that we have given here. Okay, this is also in by Q form. Yes, first condition is satisfied. Now look at both are integers. Yes. Both are integers, but Q not equal to 0. Yes. There is a 3, not 0. Yes. 2 by 3 satisfies this condition of rational number. That's why 2 by 3 is a rational numbers. Now tell me 5. Is it rational number? Here only numerator given, denominator is not there. So what we can say about denominator? Is it not a rational number? No. Look at it. Every number has 1 in its denominator. And now look at this 5. It is already converted into P by Q form. Look at both are integers and Q not equal to 0. Yes. This also satisfies this condition. So 5 is also rational numbers. Let's check another condition for rational number. A number whose decimal expansion is terminating. Friends, you know what is terminating decimal expansion? Let's check. Suppose I write here 1.43. 1.43. Look at here. After decimal के बाद आप नंबर देखिए सिर्फ 2 नंबर दिए हो. कितने? सिर्फ 2. It means it is limited. It is countable. ऐसा नहीं है कि आगे इनफाइनाइट जा रहा है. ऐसा नहीं तो नहीं है. यहाँ पे पूरा हो जाता है. सिर्फ 43 है यहाँ पे. Yes. So this decimal expansion called terminating decimal expansion. ऐसा नंबर जिसका decimal expansion terminating है, उस नंबर को भी हम क्या कहेंगे? Rational number. Yes. The second condition लिखेंगे terminating decimal expansion. ऐसे नंबर भी हमारे किसमें जाएंगे? रैशनल नंबर में. एक और कंडीशन यहां दिखता हो, यहां देख लेते हैं थर्ड कंडीशन.
a number whose terminating sorry a number whose decimal expansion is non-terminating but must be recurring. Let I write here 1.1212 goes to infinite. Friends, look at what is the difference between these two number. यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर कितने थे, इनफाइनाइट थे, काउंटेबल थे. इसके लिए उस डेसिमल एक्सपांशन को हमने क्या नाम दे दिया, टर्मिनेटिंग. लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो इनफाइनाइट जा रहे हैं, इसलिए वो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बिकॉज नंबर इनफाइनाइट जा रहा है. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, बट डेसिमल के बाद नंबर देखिए जरा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिकरिंग हो रहा है. देखिए 1 2 1 2 1 2, नेक्स्ट भी क्या होगा 1 2 1 2 1 2. इट मींस इनफाइनाइट भी जा रहा है और सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है, बट सेम नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग. तो पूरा नाम जो पढ़ लीजिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट जा रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, एंड सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिकरिंग नाम दे दिया. इसलिए ये पूरा नंबर क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. और इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है कि हम कितनी बार लिखेंगे 1 2 1 2, तो हम इस तरह से लिख देंगे 1.12 बार. बच्चों ये बार हमें बताता है कि ये नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है. कितने नंबर पे मैंने बात किया हुआ है, दो नंबर पे, एक 1 और एक 2, इसलिए 12 पूरे 12 नंबर पे मैंने बात किया हुआ, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 12 रिकरिंग हो रहा है. इसलिए हम ये लिखे, इसके बराबर अगर हम इस ऐसा लिख देंगे 1.12 बार, तो अभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहा जाएगा, इट इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ये नंबर भी फ्रेंड्स किस में जाएगा, रैशनल नंबर में. देखिए फिर से लिख लेते हैं, रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी, इन नंबर्स दोस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q form where p and q both are integers but q not equal to 0. डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कोई भी नंबर चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा. फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना भूल गया, अगर मैं 0 लिख दूं, यहां पे 0 लिख दूं तो क्या वो रैशनल नंबर बनेगा. पहली बात तो इसको हमें p by q फॉर्म में लिखना है. चलिए मुझे पता है कि हर नंबर का डिनोमिनेटर में एक तो होता ही है, चलिए मैंने 1 भी कर दिया. अब ये पूरा नंबर p by q फॉर्म में है, हाँ है, ऊपर p नीचे q, इसके बराबर p by q लिख दीजिए. अब चेक कर दीजिए कंडीशन, p and q both are integer, हाँ है, बट q not equal to 0, यस, q के बराबर तो 1 है. तो ये नंबर भी हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 0 इज आल्सो रैशनल नंबर. क्या हो गया था, 0 इज अ रैशनल नंबर. बट रिमेंबर दिस, इफ आई राइट बाय दिस वे 1 by 0, sorry, this is not rational number because look at that, q should not be 0 where q is 0. So this number cannot be a rational number. Next, number whose decimal expansion is terminating, those number also said to be a rational number. Terminating decimal expansion, ये रहा. Terminating का मतलब क्या कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो लिमिटेड होने चाहिए, हम गिन सके उतने ही होने चाहिए. हाँ तो हम गिन सकते हैं 1 2, दो नंबर तो है, इसलिए इस प्रकार के टर्मिनेटिंग, इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और ये नंबर किस में जाएगा, रैशनल नंबर में जाएगा. तीसरी बात, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. फ्रेंड्स ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब जिसका डेसिमल के बाद जो नंबर है
वो लिमिटेड नहीं है, मतलब क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है। देखिए बहुत इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितने नंबर आएंगे, हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया, मतलब वो इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। लेकिन जो नंबर है वो देखिए सेम नंबर रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो, दोनों सेम, इसलिए मैंने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में क्या है, रिकरिंग है, इसलिए पूरा नंबर क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये रहा, ये रिकरिंग की जगह पे आप मार्क कर दोगे तो भी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहा जाएगा, और ये नंबर भी आपका किस में जाएगा, रैशनल नंबर। But friends, these are the three conditions to identify that which number are called rational number. How to identify that? These are the rules and conditions to identify the rational numbers. Okay, friends, let's see what is irrational number. What is irrational number? देख लेते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो वो ये होगी कि नंबर विच आर नॉट रैशनल, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है, इस प्रकार के नंबर को हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर। दूसरी बात, नंबर which are not rational, एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कि जिस जो नंबर रैशनल नहीं है उस प्रकार के नंबर को हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि वो नंबर जो होगा वो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता। नंबर that cannot be expressed in p by q form known as irrational number, सिंपल। ओके, तो एक आइडेंटिफिकेशन तो हो गई इरेशनल नंबर की कि जो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। डेसिमल की फॉर्म में देखें तो क्या होगा, लेट मी चेक, 1.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। फ्रेंड्स अगेन मैंने डॉट डॉट किया, मतलब ये हुआ है कि इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया। यस, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज क्या है, नंबर देखिए डेसिमल के बाद इनफाइनाइट जा रहा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वो क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी था क्योंकि वो भी इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन ये क्या था, रिकरिंग, जो नंबर रिपीट कर रहा था वो सेम था। क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं, यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, जैसे यहाँ हो रहा था, यहाँ पे 12 12 12 रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने इसको रिकरिंग कहा। यहाँ पे देखिए सेम नंबर नहीं, देखिए पहले 01 फिर 001 फिर 0001, आगे होगा 4 टाइम्स 01, तो ये कोई प्रॉपर पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा, ये रैंडम नंबर हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में क्या हो गया, नॉन रिकरिंग, क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे सेम नंबर रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, रिकरिंग कहा था। यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, नॉन रिकरिंग। रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम नंबर नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग कहेंगे, नॉन रिकरिंग कह देंगे। तो ये दो कंडीशन थी इरेशनल नंबर की, नंबर व्हिच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। If it is not rational, it means it cannot be expressed in p by q form. Irrational number को p by q form में नहीं लिख पाओगे because वो irrational है। दूसरा देखिए, अगर कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट जाना चाहिए, डेसिमल के बाद नंबर कैसे होने चाहिए, इनफाइनाइट। नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि नंबर रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम नहीं। अगर सेम नंबर रिपीट करते हैं तो वो रिकरिंग बन जाता है, यहाँ पे अलग अलग नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको नॉन रिकरिंग कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट माय टॉपिक, व्हाट आर द रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आई होप यू गॉट इट। ओके, good morning friends, today we are going to start our maths first chapter, that is about real numbers. Friends, first question is that what is real number? In the earlier class we have also studied about some of numbers like
rational number, irrational number, whole numbers, integers. I hope that you all have proper knowledge about it. But today we are going to start our main topic of chapter 1, that is about real number. Okay, so let me start. Real number. Real number consists two types of number: rational number and irrational number. Rational number and irrational numbers. Friends, tell me, what is rational number? In 9th standard, in earlier classes, I hope you have studied this topic. Just remind it and recall it. What is rational number? Remember this: rational number are the number which can be expressed in p by q forms. It means number that is expressed in p by q forms, where p and q are integer but q not equal to 0. This is the first condition for rational number, and if we say this is the proper definition of rational number, is it completely right? Look at it. What is a rational number? Rational number are those numbers which can be expressed in p by q forms, where p and q are integers. And remember this, q not equal to 0. q not equal to 0. यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए. मतलब p पे 0 होगा तो चलेगा, मतलब न्यूमरेटर आपका 0 होगा तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. Let me check by example. Look at it. Suppose I write 5 by q. Is it rational number? Let me check. This number is also in the p by q form. Yes. Second condition, p and q are both integers. Yes, दोनों इंटीजर है. 5 भी इंटीजर में आता है, 2 भी इंटीजर में आता है, तो दोनों इंटीजर भी है. थर्ड कंडीशन थी कि q 0 नहीं होना चाहिए. तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, वो 0 नहीं है, इसलिए तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. दैट इज व्हाई 5 by 2 is a rational number. Let me check. 0 only. Can 0 be rational number? फर्स्ट कंडीशन ये है कि नंबर p by q फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ 0 ही है, मतलब p ही है, डिनोमिनेटर तो नहीं है. लेकिन रिमेंबर इट, एवरी नंबर हैज 1 in its denominator. Now look at this 0. It is already converted into p by q form. p and q. Now check it. p and q are integers. Yes, 0 इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में आता है, तो इंटीजर भी है. थर्ड कंडीशन क्या है? q कैन नॉट बी 0. q 0 नहीं होना चाहिए, तो q में क्या है? 1 है, 0 नहीं है. So it satisfy all the condition. So we can say our 0 is also rational number. If I write, suppose by this way, 2 by 0. Look at it. Q cannot be 0. Here Q is 0. So this number cannot be rational number. Okay friends, I hope you got it. Now second condition, क्या है rational number की? Decimal expansion. What is decimal expansion? Decimal expansion क्या होना चाहिए? Terminating. मैंने क्या लिखा? Decimal expansion कैसा होना चाहिए? Terminating decimal expansion. Look at it. Suppose I write 1.42. Decimal के बाद आप देखिए नंबर्स, डिजिट देखिए, सिर्फ 2 डिजिट है, 4 and 2. It is countable. It is completely finite. So this kind of decimal expansion is known as terminating. It is terminating decimal expansions, because after
after decimal look at the numbers, number of digits, it is completely finite. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फाइनाइट जा रहा है और हम उसको गिन ही नहीं सकते, या तो हम कंप्लीटली गिन सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, वो बिल्कुल लिमिटेड है, काउंटेबल है, इसलिए इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नंबर whose decimal expansion is terminating, something like 1.42, 3.001, 2.029, look at all this number. After decimal digits are finite, after decimal digits are finite, here after decimal digits are finite, मतलब terminating, finite नहीं है, इसलिए these all numbers are called rational number because those decimal expansion is quite terminating. So second definition भी क्लियर हो गई होगी कि ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, उस प्रकार के नंबर को भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। थर्ड कंडीशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फ्रेंड्स यहां पे लिखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका मतलब क्या? अभी हमने टर्मिनेटिंग का मतलब देखा कि टर्मिनेटिंग वो है, वो टर्म है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर फाइनाइट है तो उस पूरे एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट जा रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो डेसिमल के बाद डिजिट कैसे होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब इसमें ऐसा ही कुछ आएगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर लिखते हैं, चलो 1.12 इनफाइनाइट। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहां देखिए आफ्टर डेसिमल numbers are continuously repeating and going to infinite, वो कहीं पे भी रुक नहीं रहा, इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, राइट फ्रेंड्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया। लेकिन रिपीट होने वाला नंबर देखिए जरा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए 12 12 12, आगे भी 12 आएगा, 12 12 12 12 ये चलता रहेगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे जोड़ देंगे, इसको रिकरिंग लिखेंगे। अभी रिकरिंग का मतलब क्या हुआ भाई, कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, याद रखना रिकरिंग का मतलब ये हुआ सेम नंबर रिपीटिंग। यहां पर रिपीटिंग और रिकरिंग का दोनों का मतलब सेम ही है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, रिकरिंग, और इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो look at the entire decimal expansion which is non terminating because it is going to infinite, and recurring because same number is repeating, so whole decimal expansion is known as non terminating recurring. So these kind of numbers are also included in rational number, non terminating recurring. Look at again, we revise this topic. Rational numbers, a number which can be expressed in p by q form where p and q are integers, but remember this, q cannot be 0. This kind of number, a number which can be expressed in this condition known as rational number. Second condition, number whose decimal expansion is terminating. Look at this kind of number, decimal expansion is quite terminating. Look at finite decimal expansion, फाइनाइट डिजिट यहाँ आ रहा है, फाइनाइट डिजिट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग, ये p, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए इस प्रकार के नंबर को भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहां से ही साफ हो गया कि अगर ये टर्मिनेटिंग है, अगर डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट है तो वो टर्मिनेटिंग, अगर इनफाइनाइट है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, सीधा सीधा हो गया, इजी। लेकिन ये नंबर, ये वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ मैंने लिखा है रिकरिंग।
रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि नंबर इनफाइनाइट तो जा रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर के साथ जा रहा है, इसलिए ये पूरा एक्सपेंशन क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो दीस आर these conditions for rational number, first, second and third. Now friends, look at what is irrational number. Simply, if I define this irrational number, that a number which cannot be expressed in p by q form known as irrational number. अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। देखिए सिंपल डिफाइन कर दो पहले तो, which cannot be expressed in p by q फॉर्म। पहली कंडीशन हो गई डिफिनेशन हमारी रैशनल नंबर की, which cannot be expressed in p by q फॉर्म, वो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है इरेशनल नंबर का, लुक एट इट। इफ आई राइट अ नंबर बाय दिस 1.01 001 0001 infinite, friends tell me which kind of decimal expansion is this? Is it terminating or non-terminating? It is non-terminating because ये repeat infinite जा रहा है, तो ये non-terminating तो हो ही गया, ये तो non-terminating है, right friends? ये non-terminating हो गया, देखिए ये तो terminating था, ये देखिए non-terminating है क्योंकि infinite जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम नंबर था इसलिए मैंने रिकरिंग लिखा था, यहाँ पे देखिए सेम नंबर नहीं है, कोई प्रॉपर पैटर्न में नंबर नहीं आ रहा है। देखिए 01 001 सॉरी 0001, तो कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। कैसा हो गया फ्रेंड्स, नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए नॉन रिकरिंग। अगर सेम नंबर रिपीट होता तो वो कैसा बन जाता, रिकरिंग, लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए कैसा हो गया वो, नॉन रिकरिंग। तो these are the two steps to identify that which number are called irrational number and how to identify rational and irrational number. These are the some identification and some signs to identify those number. So rational number and irrational number. Okay friends, look at the decimal expansion again. I recall this. If I write this decimal expansion, look at it, 3.001, this is quite terminating and this is quite terminating, this is quite terminating because decimal expansion is number after decimal is not going to infinite, which is quite limited, so we can say this is terminating, वो infinite नहीं जा रहा, इसलिए इस प्रकार के decimal expansion को क्या कह दिया हमने, terminating। ये वर्ड्स बहुत फ्रेंड्स समझने जरूरी है कि ये टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, तो ये वर्ड्स हमें समझना था। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर लिमिटेड है, यह देखिए डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट जा रहा है, कैसे कर रही थी कि मैंने डॉट डॉट कर दिया, मतलब आगे नंबर जा रहा है, मैंने लिखा नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा कोई नंबर हमें लिखना है तो हम कितनी बार लिखेंगे, ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं इसमें कि भाई अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर लिखना है तो आपको डेसिमल के बाद 3 बार लिखो या 4 बार, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। अगर इसकी जगह पे अगर आप 1.12 बार इस तरह से लिखोगे तो भी ये नंबर आपका यही बता रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बिकॉज जितने नंबर पे मैंने बार किया है उसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए पूरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बार बता रहा है जो रिपीट हो रहा है इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए वो क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, राइट। सो सेम नंबर रिपीटिंग, सो दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लुक एट इट, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहां पे देखिए
डेसिमल के बाद जो नंबर है वो इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए वो सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एंड यहां पे देखिए नॉन रिकरिंग, क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं होते, राइट। अगर सेम नंबर रिपीट होते हैं तो वो भी किस में चला जाता, रिकरिंग में चला जाता, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये नॉन रिकरिंग हो गया। ओके फ्रेंड्स, लेट्स नेक्स्ट वी विल चेक द प्रॉपर सम टर्म्स। फ्रेंड्स लुक एट algorithm lemma and Euclid division lemma. These are the some essential and important terms for our chapters and maths as well. Look at here, what is algorithm? Algorithm का मतलब क्या होता है? Steps used to solve problems. Algorithm की सिंपल डेफिनेशन ये हो गई, स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपको अहमदाबाद जाना है, तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि सबसे पहले आपको शायद मैसना जाना है, इसके बाद आपको आगे जाना है, फिर अहमदाबाद आ जाएगा। तो ये वन काइंड ऑफ ये लॉजिकली स्टेप्स होते हैं। लेकिन मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए जो स्टेप्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्गोरिथम। राइट फ्रेंड्स, लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट जो है वो पहले से प्रूव हो चुका है और वो प्रूव्ड स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल आगे के कुछ नए रिजल्ट प्रूव करने में यूज करते हैं, तो उस प्रकार के प्रूवन स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारे चैप्टर्स में है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? सपोज फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू integers a and b where a greater than b। कोई दो इंटीजर सपोज कर लेते हैं कि जो a और b है, वहां पे कंडीशन क्या है कि a b से बड़ा है, a greater than b। there exist, suppose that is two integers a and b where a greater than b, there exist, remember this, there exist two unique integers, two unique integers q and r, q and r satisfying condition a equal to bq plus r, where r की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से ऑलवेज कैसा होगा, छोटा होगा। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों ये कई बार सीबीएसई में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन यूक्लिड डिवीजन लेमा या स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये याद रखना क्योंकि सीबीएसई में कई बार पूछा जाता है। तो किस तरह से हम इसको समझा देंगे, लिखेंगे फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वेयर a ग्रेटर देन b। कोई दो इंटीजर हम ले लेते हैं a एंड b, जहां पे क्या कंडीशन होगी, a b से बड़ा है। वहां पे दो ऐसे इंटीजर हमें मिलेंगे q एंड r जैसे, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, a इक्वल टू bq प्लस r। वहां पे r क्या होगा, r की वैल्यू ऑलवेज याद रखना 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, बट b से ऑलवेज छोटी होगी, b से ऑलवेज कैसे होगी, छोटी होगी। फ्रेंड्स ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कहीं ना कहीं हमारा डिवीजन एल्गोरिथम से ही आया है। देखते हैं, ये मैं यहां पे a लिख देता हूं, b यहां पे q होगा, यहां पे r। फ्रेंड्स वी नो
this is called dividend, this is called divisor, this is called quotient, and this is called रिमाइंडर, राइट। देखिए तो मैंने क्या लिखा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी इंटीजर्स को आप ये फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एनी नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। लेट मी चेक, यहां पे मैं छोटा सा एग्जांपल से इसको डिनोट कर लेता हूं, तो समझाना ट्राई करता हूं कि अगर मैं a की जगह पे 5 ले लेता हूं और b की जगह पे 2 ले लेता हूं, वहां पे a ग्रेटर देन b लिया है मैंने, यहाँ पे मेरा a ग्रेटर देन b हो गया। देखिए a अंदर है तो 5 है, b बाहर है तो वो 2 है, तो a ग्रेटर देन b मैंने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर लिया है। अब हमारा नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो क्या होगा, 2 2 4 बन जाएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा q हो गया, ये क्या हो गया, r हो गया। तो मैंने नंबर कौन सा लिया था, 5 लिया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, कोई भी नंबर को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या मैं 5 को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेट मी चेक। चलिए 5 को मैं a की जगह पे 5 ले लिया, b की जगह पे क्या है, देखिए b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 2 है। चलो b की जगह पे मैं लिख देता हूं 2, q की जगह पे क्या है, देखिए वहां पे भी 2 है, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, b इंटू क्यू है तो 2 इंटू 2 प्लस का प्लस, r कितना है देखिए वहां पे, r कितना है 1 है, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। देखो 2 2 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, a इक्वल टू b क्यू प्लस r। यहां पे मैंने 5 को एक्सप्रेस किया तो कुछ इस तरह से मैं करूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये जो डिवीजन लेमा है यूक्लिड की, वो भी हमारे प्रॉपर डिवीजन एल्गोरिथम से ही हमने इसको जनरेट किया है और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, लुक एट क्वेश्चन 1, फाइंड HCF ऑफ 135 and 225 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप इसका HCF फाइंड कर दीजिए। एक HCF फाइंड करने की तो पुरानी मेथड हमारे पास जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड है, उससे तो हम आराम से कर लेते हैं। आई होप यू गॉट इट। बट अब हमें वी नीड टू फाइंड द HCF बाय हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, देखते हैं। पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमारा क्या डिवीजन एल्गोरिथम ही वन काइंड ऑफ लॉन्ग डिवीजन से ही आता है। तो पहले हम इसको पहला हमारा लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। 2 to 5 को मैं 135 से डिवाइड करता हूं, है ना। तो पहले ही 135 वन टाइम दैट इक्वल टू 135 दैट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 होगा, 12 में से 3 निकाल दीजिए, ये होगा 90, यहाँ पे होगा 0। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 135 को 90 से वापस डिवाइड करेंगे। फिर से 90 बन जाए, 90 होगा, माइनस कर दीजिए, 5 होगा, 13 में से 9 निकाल दीजिए, कितना होगा 4 बचेगा, राइट। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगी। फिर भी हम 90 को 45 से डिवाइड कर रहे हैं, 45 होगा 90 0। देखिए अब रिमाइंडर हमारे 0 होगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा HCF का 45। अब इसको हम, ये तो डिवीजन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, लेकिन अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू b प्लस r की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, लेट मी चेक। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में कहा था कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूक्लिड डिवीजन लेमा लाइक a इक्वल टू b प्लस r। कोई भी नंबर है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के तौर पे उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। वहां पे r क्या होगा 0। ये कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि r की वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी, बट b से ऑलवेज कैसी होगी, छोटी होगी। तो हमारा जो नंबर था 225,
उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 to 5 को कैसे लिखेंगे, a की जगह पे 2 to 5 लिख दीजिए। b क्या है फ्रेंड्स 135, तो b की जगह पे 135 लिखिए, इनटू ब्रैकेट में क्या होगा, ये q कितना है 1 है, और r कितना बचा था फर्स्ट में 90 था। ये फर्स्ट डिवीजन को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिख दिया इस पोर्शन को। अब ये पोर्शन को लिखिए, अब हमने किसको डिवाइड किया था 135 को किया था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 135, 135 में b कितना है 90 और q कितना है 1, तो क्या होगा यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितनी थी 45। फ्रेंड्स ये डिवीजन भी हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा में हो गया। थोड़ा देखते हैं, अब हमने क्या किया 90 को 45 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखते जा रहे हैं, यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रही है उसको आपको वापस किसको डिवाइड किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर से करना है। पहले मैंने 2 to 5 को 135 से किया है, तो रिमाइंडर बची 90, अब हमें 135 को 90 से करना है, जो रिमाइंडर बचती है उससे डिवाइजर को डिवाइड करना है। देखिए 90 से 135 को यहाँ पे 90 को 45 से करना है। जब तक रिमाइंडर 0 ना बने तब तक ये प्रोसेस हमें चालू रखनी है। ओके, तो ये डिवीजन को भी हमने ईडीएल में डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ किसको हमने एक्सप्रेस किया है 90 को, या लिख दीजिए 90 इक्वल टू क्या होगा b 45 एंड q कितना है 2, तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितनी फ्रेंड्स 0, रिमाइंडर हमारी 0 हो गई। यूक्लिड डिवीजन लेमा में याद रखिए जब रिमाइंडर आपकी 0 हो जाएगी, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 योर प्रोसेस इज स्टॉप्ड, आपकी प्रोसेस वहां पे बंद हो जाएगी, और बिल्कुल इसके ऊपर वाली जो रिमाइंडर होगी, बिल्कुल इसके ऊपर वाली जो रिमाइंडर है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में बाकी पीछे क्या होता है r होता है, ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर वाली जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो 135 into 2 to 5 का HCF कितना होगा फ्रेंड्स 45, तो लिख दीजिए यहाँ पे HCF 135 and 2 to 5 that's equal to 45. Okay friends, look at question number 2. Show that any positive integers is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, ये सिंपली क्वेश्चन ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो। आई थिंक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, positive odd integer. Show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. फिर सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि इंटीजर्स कौन सा है, फिर इसमें से हम और निकालेंगे। तो अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा हमने कि कोई भी इंटीजर को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा a equal to bq plus r के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट मी सॉल्व by EDL A equal to BQ plus R where R क्या होगा less than B। यहाँ पे हमें तो A को आइडेंटिफाई करना है जो हमारा इंटीजर्स है। सबसे पहले इंटीजर फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें से हम ऑड नंबर निकाल लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि B कितना है, देखिए BQ, यहाँ पे B कितना होना चाहिए 6। अगर if b इक्वल टू 6, अगर b 6 है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बन जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r where r 0 less or equal less than b, right? e इक्वल टू 6q प्लस r where r क्या होगा 0 या 0 से बड़ी या b से छोटी।
फ्रेंड्स देखिए आर, देखिए रिमाइंडर आपकी बी से छोटी ही होनी चाहिए। यहाँ पे बी कितना लिया हुआ है मैंने 6, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया, क्वेश्चन में से ही लिया है, क्योंकि हमारा जो प्रूफ जो थी वो हमें, हमारा जो बी आप देख सकते हैं वो 6 है, क्योंकि मल्टीपल में कितना आ रहा है 6, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखिए क्यू के साथ कौन है बी, तो यहाँ पे 6 क्या बता रहा है, बी की वैल्यू बता रहा है। अगर बी 6 है तो आर की पॉसिबल वैल्यूज कितनी बनेगी, लेट मी चेक। सो आर कैन बी, देखिए 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है फ्रेंड्स। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 लिखूं नहीं, क्योंकि b 6 है और r की वैल्यू b से छोटी ही होनी चाहिए, इसलिए मैं 6 नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं अभी r की वैल्यू लिख रहा हूं तो 5 तक ही आएगा। तो r की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक ही होनी चाहिए। ओके, ले लीजिए पहली वैल्यू ले लेते हैं, a इक्वल टू b क्यूब प्लस r में b कितना है 6 क्यूब, r की वैल्यू में 0 डाल देता हूं, राइट। तो ये पहली वैल्यू मुझे क्या मिल गई, a इक्वल टू 6, मैं 0 नहीं लिखा, ये फर्स्ट केस 1। केस 2 में क्या होगा, a इक्वल टू b क्यूब प्लस r में b की वैल्यू 6 है, r कितना ले लूं 1, ये क्या बन गया a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। केस 3, a इक्वल टू b क्यूब प्लस r 6 क्यूब, r की वैल्यू कितनी ले लूं, तो पहले मैंने 0 लिया, 1 लिया, अब 2 लिया, तो क्या फॉर्म किया, a का स्वरूप कैसा बन गया, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। यहां पे लिख रहा हूं a इक्वल टू b क्यूब प्लस r 6 क्यूब, 2 ले लिया, अब मैं 3 ले लेता हूं, तो a क्या बन गया 6 क्यूब प्लस 3 बन गया, राइट। a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, देखिए 6 क्यूब प्लस, अब मैं ले लेता हूं 4, तो ये 6 क्यूब प्लस 4 बन गया। नेक्स्ट एक बाकी है अभी b क्यूब प्लस r, देखिए 5 6 क्यूब प्लस 5, अब कोई भी r की वैल्यू बची नहीं है, r की 5 वैल्यू थी, 0 1 2 3 4 5 सॉरी 6 वैल्यू थी, 6 केसेस हमने बना दिए कि इंटीजर्स क्या हो सकता है। तो इंटीजर ऐसा हो सकता है, जब रिमाइंडर 0 होगी तो आपका इंटीजर होगा 6 क्यूब, रिमाइंडर 1 होगी तो इंटीजर बनेगा 6 क्यूब प्लस 1, रिमाइंडर 2 होगी तो 6 क्यूब प्लस 2 बनेगा, 3 होगी तो 6 क्यूब प्लस 3, 4 होगी तो 6 क्यूब प्लस 4 एंड 5 होगा तो 6 क्यूब प्लस 5। फ्रेंड्स हमें यहां पे मानना है पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो गए, लेकिन ऑड इंटीजर मानना है। इतने सारे केसेस में से ये जो मैंने 6 बॉक्स बनाए हैं, इसमें से हमें ऑड इंटीजर फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स याद रखिए, एनी नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर ऑलवेज गिव्स इवन नंबर। कोई भी नंबर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑलवेज वो नंबर कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा। देखिए यहां क्यों एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे 6 इवन नंबर है, तो 6 क्यों आपका कौन सा नंबर होगा, इवन बनेगा, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई हुआ है। ये देखिए 6 क्यूब ये इवन है, लेकिन ऐड कर दिया आपने इवन नंबर 2, यहां पे देखिए 6 क्यूब प्लस 1, जब भी इवन नंबर में आप ऑड नंबर ऐड करोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। देखिए व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर दैट ऑलवेज गिव्स इवन नंबर, तो 6 क्यूब क्या होगा, इवन होगा। ओके, हमें तो ऑड चाहिए। एंड व्हेन ऑड नंबर इज एडेड इन इवन नंबर, जब कोई भी इवन नंबर में आप ऑड नंबर ऐड करोगे, मान लो कि 4 आपका इवन नंबर है और इसमें मैं कोई ऑड नंबर 1 ऐड कर देता हूं, तो फाइनल आंसर क्या होगा 5, और फाइनल आंसर ऑलवेज क्या होगा, ऑड नंबर व्हेन ऑड इज एडेड इन इवन नंबर। तो यहां पे सेम बात है, यहां पे देखिए आप इवन में मैंने क्या किया, ऐड ऑड नंबर को ऐड किया है, इसलिए ये ऑलवेज कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। या देखिए
इवन में क्या ऐड हुआ है, इवन में इवन ऐड करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, देखते हैं यहाँ पे, मानो कि मैं 8 इवन नंबर ले लेता हूँ, 2 भी इवन ले लेता हूँ, इसका फाइनल आंसर क्या होगा 10, वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इवन में इवन ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर। तो ये इवन, क्या लिखिए, इवन नंबर में ऑड ऐड कर दिया, फाइनल आंसर क्या होगा, ऑड होगा। या पे देखिए इवन में इवन ऐड हुआ है, ये भी इवन होगा, हमें तो ऑड चाहिए। या पे देखिए इवन नंबर में ऑड किया है, ये भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 1। कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर्स क्या 6q + 1 के फॉर्म में हो सकता है, यस हो सकता है। 6q + 3 के फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड 6q + 5 के फॉर्म में बिल्कुल हो सकता है। Hence, we can say here, we can say any positive or integer can be expressed in 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। ये फ्रेंड्स ये आपकी प्रूफ हो गई कि कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हो या स्टेट कर सकते हो। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए आपकी पॉसिबल वैल्यू इतनी आई थी, तो पॉसिबल इंटीजर इतने सारे थे, पॉसिबल इंटीजर इतने सारे थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि when an integer is multiplied by even number that always gives even। तो ये तो इवन है, इवन में और डालते हैं तो वो और बनता है, तो ये और हो गया। इवन में इवन है तो ये तो इवन बन गया। इवन में मैंने और प्लस किया है तो ये भी और देगा मुझे, तो ये मेरा ऑड नंबर में चला गया। ये देखिए इवन में मैंने इवन प्लस किया है, वो भी ऑलवेज इवन होगा, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। और 6q + 5 ये तो इवन है, क्योंकि इवन नंबर से p को मल्टीप्लाई किया हुआ, इसलिए 6q तो इवन है, लेकिन मैंने इसमें ऑड नंबर प्लस किया है, इसलिए उसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। इसलिए 6q + 5 भी मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर